सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम टू ऑल। अंकुश बजाज, गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जेडे भी लाइव हो चुके ने और जेडे हले तक लाइव नहीं होए जल्दी जल्दी लाइव हो जाओ। अपने ग्रुप्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਤੇ ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ, ਉਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਵੈਲਕਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋਂ ਮੈਥਸ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਧੀਆ ਜਿਹੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਇਹ। ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਡਾ 247 ਅੱਡਾ 24/7 ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਓ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ PSSB ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਸੰਬਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੱਲ, ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ PSSB ਦਾ ਬੈਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤਾਂ ਬੈਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ Y354 ਦਾ ਕੋਡ ਲਗਾ ਲੈਣਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਹੈ 77% ਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੁਮਨਦੀਪ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰਾ ਪੁਖਤਾ ਨੇ, ਅੱਜ ਹੋਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਟੈਕਨੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆਏ। ਪਰ PSSB ਦੀ ਟਾਈਪਿੰਗ ਅਗਰ ਹਲੇ ਤੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਟਾਈਪਿੰਗ ਵੀ। ਚਲੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਨਸਰ ਕਰੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਈਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ। पहला क्वेश्चन की कह रहा है 10 ईयर्स एगो द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मैंबर्स। एक फैमिली ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ 4 ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਕਿੰਨੀ ਸੀ 24 ਈਅਰਸ। तो 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਸੀਗੀ। ਓਕੇ, 3 children have been born and the average age of the family is 22। आई एम वेरी सॉरी। तो 22 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਹੋਗੀ। So what are the present ages of the children if two children are identical twins and differ by 3 years from the younger? हाँ जी, की आंसर होएगा उरे? देखते हैं केदा केदा आंसर आ गया। सी ऑप्शन बहुत बच्चों का सी ऑप्शन आंसर आया सर। कल मैथ ईजी टू मॉडरेट सी। अच्छा, कल के पेपर के मैथ ईजी टू मॉडरेट सी। चलो अगे चलते हैं जी, क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन के आप एवरेज का क्वेश्चन है, सिंपल जहा क्वेश्चन है। 10 साल पहला की गल की है तो आप 10 साल पहला की एवरेज, तो एवरेज 10 ईयर्स बिफोर एवरेज कितनी है। तो 10 साल पहला की एवरेज कितनी है, वो हैगी अपने कोल कितनी 24 और मैंबर कितने ने 4। जे मैं सम की गल करांगा, सम पूरी फैमिली की एज का 10 साल पहला कितना हो जाऊगा 24 चौक 96, 4 फैमिली मैंबरस है। कदों का 10 साल पहला का। जे मैं प्रेजेंट की गल करांगा तो प्रेजेंट का सम कितना हो जाएगा, प्रेजेंट का सम कितना हो जाएगा 96 प्लस 40। वेरी गुड आंसर उमेश कुमार, सारे का आंसर सही है। कुछ बच्चों का आंसर गलत है, कुछ बच्चे ए ऑप्शन आंसर दे रहे हैं, उन्होंने आंसर गलत है। ठीक है, तो इतने कितना आ गया अपना 136। तो प्रेजेंट सम कितना 136। तो 22 एवरेज है अज की डेट की जो फैमिली मैंबर किन्ने हो गए 7। तो जो फैमिली मैंबर 7 ने तो उदों सम कितना हो जाऊगा,
उदों कितना हो जाऊगा 22 गुना 7 है ना। उदों अपने कोल कितना हो जाऊगा 22 गुना 7। ओके 136 तो 22 गुना 7 कर लेना 7 दूनी 154 क्लियर 154 ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 18 ਦਾ 18 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਚਿਲਡਰਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਏਜ ਆ 18 ਸਾਲ ਕਿੰਦੀ ਏਜ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਏਜ ਆ 8 8 16 ਤੇ 2 18 ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ 4 4 8 7 15 ਯਾਨੀ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ 7 7 14 ਚ 18 ਯਾਨੀ ਆ ਦੋਵਾਂ ਚ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਬੱਚੇ ਟਵਿੰਸ ਨੇ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਏਜ ਸੇਮ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਯੰਗਰ ਵਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 3 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ। तो जे आप गल करिए आ यंगर वन कितना डिफरेंस आ रहा 6 का मतलब ये ऑप्शन नहीं हैगी तो आंसर अपने को ऑप्शन बनया 3 साल बनते पे ने। अदरवाइज आप किस तरह करते अपने को 18 आ गया 3 चिल्ड्रन का सम ऑफ एज कितना आ गया अपने को 18 आ गया दोवां दी एज दो बच्चों की एज तो सेम ठीक है तो जो तीसरा बच्चा है वह 4 साल 3 साल छोटा यानी आ सारी चीज़ का सम है जो अपने को 18 बनता पाया तो 3x की वैल्यू ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 21 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੇ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7 ਯਾਨੀ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਅਗਲਾ ਬੱਚਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆ ਗਿਆ। ਅਗਲੇ ਕੁਐਸਚਨ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। आवाज सारा कुछ ओके है एवरीथिंग इज ओके चलो नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं। नैक्सट क्वेश्चन अपने को की है अ बैंक पेज तो क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और क्वेश्चन है जरा काफ़ी सही क्वेश्चन है। अ बैंक पेज 16.5% पर एनम एज इंटरस्ट ऑन इट्स डिपोजिट बैंक जिन्ना भी पैसा लेंदा हुण बैंक का काम की है बैंक का पैसा है लोगों तो पैसे लेने डिपोजिट ते जिन्होंने पैसे चाहिए आ उन्होंने पैसा देना यानी लोन देना ठीक है यानी लोन देना आही बैंक का कहता जो बैंक किसी को पैसा लैंदा उन्होंने जिहड़ा इंटरस्ट दिंदा डिपोजिट के उत्ते 16.5% जो कोई बोरर बैंक को पैसा खड़दा वाइल इट चार्जिस 20% पर एनम फ्रॉम इट्स बोरर ते पर ईयर का 20% बैंक है जिहड़ा वो चार्ज कर अगर एट द एंड ऑफ द ईयर जो साल के एंड के जे उन्हें 10.5 करोड़ रुपया अर्न किया कमाया तो दसो ट्रांजैक्शन फाइनैंशियल ईयर की कितनी सी उमेश किरण स्वैग वेरी गुड। तो क्वेश्चन क्या सिंपल या क्वेश्चन ट्रांजैक्शन का मतलब क्या आप देखा कि 20% इंटरस्ट ये जड़ा लै रहा लोगों को और देन वेले कितना दे रहा देन वेले कितना दे रहा 16.5 तो 20 ते 16 दे विच यानी डिफरेंस है जी बैंक का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा 3.5% तो 3.5% की जी वैल्यू आ वो गिवन है ठीक है 10.5 करोड़ 3 ते चला गया 3 5 15 तो ये कितने चला गया यदि कटिंग करिए तो आप कि चल गया है 3 ते 1% की वैल्यू यानी कितनी होगी अपने को 3 करोड़ क्लीयर 100% आप ट्रांजैक्शन करनी है तो ट्रांजैक्शन मनी ट्रांजैक्ट कितनी हुई तो हर एक चीज़ जी वैल्यू बेस वैल्यू कितनी होती है 100% तो 100% की वैल्यू कितनी होगी 300 करोड़ ये ऑप्शन अपने को सुमनदीप वेरी गुड सारे का आंसर आ गया उमेश वेरी चलो अगले क्वेश्चन से चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने को कहाँ क्वेश्चन की है आ क्वेश्चन तुहानू मैं कल दिता सीगा कुछ बच्चों ने किया कुछ बच्चों ने मैनू आंसर नहीं किया हम देखते हैं क्वेश्चन आप करना की सी क्वेश्चन समझ अच्छा कि आंसर आ गया क्वेश्चन कल होमवर्क लिए दिता सीगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया होया है रेंज कढ़नी सी किन्नू क्वेश्चन समझ लग गया किन्नू क्वेश्चन आ गया तो जल्दी जल्दी दस दो जी।
आ गया किसी का आंसर इस क्वेश्चन का? चलो गल करते हैं, दो अपने को अलॉय ने, एन अलॉय ऑफ कॉपर एंड एल्यूमीनियम। अलॉय 1 की गल करते हैं, ये ऑप्शन आंसर आ रहा निकिता का। चलो गल करते हैं, क्वेश्चन की गल करते हैं। एक अलॉय अपने को A1 अलॉय ले लेने 20 तो 40। चलो देखते हैं अलॉय 1 ले लेने ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਾਂ ਕੋਪਰ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 40% ਕੋਪਰ ਆ, 40% ਕੋਪਰ ਤੇ 60% ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਂਗੇ 2 दूनी 4 2 ਤੀਏ 2 ਰੇਸ਼ੀਓ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ 3। कुछ बच्चों का बी, हाँ ये रेंज कढ़नी सी, काफ़ी बच्चों का आंसर ये गलत आया, काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन के दिक्कत आई है। हुण दिक्कत क्यों आई है ये नहीं मैंने समझ। दूसरा अलॉय दूसरा सीगा, इस अलॉय के आ रेशियो आ गई जी, आ रेशियो याद रखना ठीक है, कोपर ते एल्यूमीनियम। दूसरा जो अलॉय है कोपर ते जिंक का जी, कोपर एंड जिंक का जिहदी रेशियो की, आ तो मैं सिर्फ स्टेटमेंट लिखी हले तक। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ these two alloys are mixed in such a way that in the overall alloy there is more aluminium than, ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਲੀਅਰ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜ਼ਿੰਕ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਐਂਡ ਦਾ ਕੋਪਰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਟ X% ਆਫ ਦਿਸ ਅਲੋਏ, ਤੇ ਇਸ ਅਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਜਿਹੜਾ X% ਹੈ। what is the range of the values x can take, x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਲੀਅਰ, x ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਸਕਦੀ। तो इस क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ है ना, मैक्सिमम होना चाहिए ठीक है, जिंक तो ज़्यादा होना चाहिए एल्यूमीनियम। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਂਜ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਲੀਅਰ। ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਰੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ। ਜੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਤੇ ਜ਼ਿੰਕ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, 7 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੂਰੀ, 3 ਇੱਧਰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ 7 दूनी 14, ਆ ਕੋਪਰ ਦੇਖੋ ਜੀ 7 दूनी 14, 3 दूनी 6 प्लस 6, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੋਪਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ। ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 21 बन गया, जिंक का मेरे को 21 बन, दोवें 21 बन गए, क्लीयर। हुण कोपर है कितना मेरे को 20, 20 21 21 की रेशियो, ते कोपर की है यानी एक्स, ते कोपर अपने को कितना 20, 20 हिस्से किहड़े कादे ने कोपर दे, किन्नियां विचों टोटल दे विचों, टोटल कितना बनया 62, 20 का 62 कितना परसेंट, ठीक है 20 का 62 कितना परसेंट हो गया, तो तुहाडा बन जूगा 32.5, ठीक है। तो 20 का 62 कितना हो गया 32.5, यानी ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਕੋਪਰ ਦੇ ਅਲੋਏ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਊਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜ਼ਿੰਕ ਹੋ ਜੇ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੌਰੀ ਕੋਪਰ, ਜਦੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਦੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੈਕਸਿਮਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ, ਆਹ ਪਹਿਲੀ, ठीक है। जो जिंक है ही नहीं, अगर जिंक एब्सेंट है, अगर जिंक एब्सेंट है, नो जिंक इज देयर, ओनली द एल्यूमिनियम इज देयर, एट दैट टाइम कोपर कितना अपने को 40%, ठीक है। तो रेंज की बन गई, रेंज अपने को बन गई 32 तो लैके 40% ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਪਰ ਹੋਏਗਾ ਅਲੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉਮੇਸ਼ ਸਰ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਨੂੰ 7 ਗੁਣਾ ਤੇ 3 गुना क्यों किया, देखो जिंक ਨੂੰ 3 गुना क्यों किया, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਕੁਐਸਚਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿੰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਜਿੰਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇਹ ਆ ਗਈ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜਿੰਕ ਤੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਕਰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਬਰਾਬਰ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰੇਂਜ ਲੱਭਣੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ, क्लीयर। पहली कंडीशन की आप जिंक ते एल्यूमीनियम कर दिए बराबर। दूसरी आप कंडीशन की रखी कि जिंक नूं कर दिए 0। जो जिंक ते एल्यूमीनियम किया बराबर, उदों कोपर कितना परसेंट बनया 32.5%।
जो जिंक ते एल्यूमीनियम नूं कीता बराबर, ठीक है, इत्थे जिंक कितना हो गया ना, एल्यूमीनियम 21 हो गया, 7 21 बराबर करने लई मैं दोवां नूं 7, उपरली रकम नूं 7 नाल, नीचे वाली रकम नूं 3 नाल मल्टीप्लाई कीता, कोपर के हिस्से 14 बने, उरे 6 बने, दोवें मैं ऐड कर दिते, एल्यूमीनियम के 21 21 बन गए, दोवें बराबर हो गए। तो जो बराबर किया उदों 32.5% कोपर, यानी ये तो हमेशा उपर ही रहेगा। तो इसलिए लिखा ना ग्रेटर दैन, इक्वल टू का नहीं पाया, इक्वल टू का नहीं पाया, क्योंकि इतने लिखा सीगा कहना जिंक इज ऑलवेज मोर दैन, सॉरी एल्यूमीनियम इज ऑलवेज मोर दैन जिंक, इस करके इतने इक्वल टू ग्रेटर नहीं पाया, ग्रेटर दैन इक्वल टू ग्रेटर दैन, यानी आह जी लास्ट ए पॉइंट है जो ये तो हमेशा उत्ते होना चाहिए 32.5% तो उत्ते उत्ते, और रेंज कितने तक जाती है अपनी 40% तक कोपर, जो सारा ही सारा कोपर। आह क्वेश्चन सीगा। अगले क्वेश्चन ते चलते हैं, सी ऑप्शन आंसर सीगा, एक बार क्वेश्चन वीडियो नूं रिपीट करके देखना अगर समझ ना आई हो। अब PSSB का दिसंबर महीने पेपर है जी, दिसंबर महीने फस्ट वीक या सैकेंड वीक दे विच पेपर आ जाऊगा, तो टाइम रह गया बहुत ज़्यादा घट, बैच जिहड़ा आपां एक्सटेंड कीता सीगा वो बैच है हुण जल्दी शुरू। ईमेल ID उरे फिल करनी है अपनी, इस बैच नूं लैण लई अड्डा 24/7 की वैबसाइट ते चल जाना, सर्च टोगल ते तुसीं जाना वा, उत्थे तुसीं पंजाब टाइप कर देना या PSSB टाइप कर लियो, इत्थे अपनी ईमेल ID फिल करनी है, उसके बाद उरे आपां कूपन कोड लगाना है Y354, अपलाई कर देना। आ विंडो खुलेगी उदों ही जो तुसीं अड्डा 247 की 24/7 की वैबसाइट पर जाओगे, PSSB टाइप करोगे, सर्च टोगल पर जाके एक विंडो एवें दी खुलेगी, इत्थे व्यू ऑफर पर क्लिक करोगे, फिर ये वाली पॉपअप विंडो खुलेगी, ये सारी डिटेल भरूंगे, अप्लाई इत्थे करना, इत्थे नहीं करना क्योंकि ये डिस्काउंट है ज़्यादा, मोर डिस्काउंट। निकिता बांसल 40 किवें आया, 40 का दिता होया, 40 का दिता ऑलरेडी गिवन कि एल्यूमीनियम कोपर के जिंक 0 हो गया तो 40 40 है, क्लियर। तो तुहाडा जिहड़ा बैच फिर किन्ने का मिल जाएगा, तुहानू 1840 रुपए का बैच मिल जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल जहा क्वेश्चन है, बहुत ईजी, तो इहदा आप देखिए ईजी, पिछला क्वेश्चन थोड़ा जिहा मॉडरेट सीगा, समझण वाला सीगा, पर क्वेश्चन बड़ा प्यारा सीगा। ईजी क्वेश्चन है, अ परसन स्कोर्स 45% ऑफ द टोटल मार्क्स, 45% लैंदा वो टोटल मार्क्स दे, पर फिर वक्त फेल हो जाता है 40 नंबरों के नाल, क्लियर। तो 40 नंबरों के नाल फेल हो गया, द पासिंग परसेंटेज ऑफ एग्जाम इज 55%, पासिंग मार्क्स कितने ने 55%, तो व्हाट इज 15:3 बाय 4% ऑफ द मैक्सिमम। जल्दी क्वेश्चन जल्दी कर लो भाई। हाँ जी, जल्दी क्वेश्चन जल्दी आंसर कर दो, साढ़े सारे दे आंसरस मैं उड़ीक रहा, फोन पर बार बार देख रहे हैं कदों कौन कितनी जल्दी आंसर देवे। हाँ जी, की आंसर आ गया था, डी ऑप्शन नन आंसर आया, निकिता बांसल का सारे नालों पहला आंसर आया, लिख दिए सुनहरी अखरां दे विच नाम फस्ट, जिहड़ा बंदा फस्ट आया, फस्ट कौन आया, निकिता बांसल। सेकंड मनदीप सिंह ने एग्जैक्ट आंसर भी दे दिता 63, वेरी, सेकंड इज द मन। थर्ड, तीसरा विनर, तीसरा इज एडी, इन्होंने आंसर दिता, बहुत वधिया गल है यार, मस्त, ठीक है। तो 45% टोटल नंबर किन्ने, टोटल नंबर का आया कि 45%, तो पास होने की कंडीशन की है 45% के नाल 40 नंबर होर लैंदा ते फिर होना सी उन्हें पास, यानी 55% नंबर बनती, 45 उधर चल गया, 5% की वैल्यू कितनी आ गई, 40 आ गई, 1% की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, 8 5 40, 8 आ गई, तो 100% की अपने को वैल्यू कितनी आ गई, 15 चौके 60 जमा 63, ठीक है। सेकंड, एक सेकंड, या 10 आना,
ठीक है, उरे 10 आना, ठीक है। प्लस 40 इज इक्वल टू कितना 55 ते डिफरेंस कितना आ गया 10, 10 की वैल्यू की 40 ते 100% की वैल्यू कितनी आ गई 400, टोटल मार्क्स आ गए। तो 65 ते 63, तो 63 बटा 400 गुना 400 ते आंसर अपना कितना आ गया 63, तो विच इज नन ऑफ द। क्लियर। चलो जी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन की आ गया अपने को, a dealer offers a discount of 10% on marked price of an article and still makes a profit of 20%। डिस्काउंट 10% का दे के भी 20% का प्रॉफिट वो कमा रहा वा। इफ इट्स मार्क्ड प्राइस इज ₹240, देन फाइंड द कॉस्ट। हाँ जी की आंसर आऊगा उरे? आंसर की बनता जी, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀਕ ਨੇ ਮੈਥ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ। ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 24/7 ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸਿਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਫਲਾਈਨ ਫੀਸ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਟੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਉਰੇ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿੱਥੇ, ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 247 ਤੇ ਟੌਪ ਦੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ। ਸੁਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ 1800, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਾਰਕਡ ਪ੍ਰਾਈਸ 2400 ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, 10% ਦਾ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਕੀਤਾ ਤੇ 2400 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ 240 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ 10% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। 10% 200। ਕਲੀਅਰ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣਦਾ ਫਿਰ ਉਰੇ 2160, तो 2160 ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ 20% ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। तो 2160 ਤੇ 20% ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ, तो 120 गुना की बन गया अपने को 100। ठीक है, तो ठीक है ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ कटिंग करके अपनी वैल्यू कितनी आ गई 12 18 216, वो जीरो है तो 1800 की सी अपनी कोस्ट प्राइस कितनी सी 1800। बी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन से चलते हैं। 5 men 2 boys working together can complete 4 times as much as work per hour a man and a boy completes working together। The work completed by a man and a woman should be in the ratio। तो सिंपल जी गल है कि मैन ते नॉट वूमन यार बॉय, मैन ते बॉय की रेशियो कड्ढनी है, एफिशिएंसी रेशियो कड्ढनी है, और कुछ नहीं। क्वेश्चन फिर तो रिपीट कर देवां। 5 आदमी ਅਤੇ 2 लड़के इकट्ठे काम करते हुए एक आदमी ਅਤੇ एक लड़के इकट्ठे काम ਕਰਨ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ 4 ਗੁਣਾ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟੇ ਕੰਮ पूरा कर सकते ने। एक आदमी ਅਤੇ एक लड़के द्वारा पूरा किया गया काम अनुपात की होना चाहिए है। ध्यान नाल आंसर देना है सारिਆਂ ने बई। हाँ जी चलो सारे का 2 रेशियो 1 आ रहा। देखने हैं यार, आ देखो 5 men प्लस 2 बॉयज, ठीक है। 5 men plus 2 boys can complete 4 times as much as 4 times as much as 1 man and 1 boy। 1 man and 1, एक ही है 4 टाइम्स देता है, एक ही है। कितना आ गया 5 चौके 20, 20 मैन, ठीक है। इधर से माइनस कर दिए एक,
ये देखते हैं क्या लग रहा है। हाँ हुण आंसर आना शुरू हो गया। चलो करते हैं क्वेश्चन ਨੂੰ। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 5 ਚੁੱਕੇ 20 men plus 8 boy is equal to 1 man plus 1 ਆਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ क्वेश्चन। 5 men and 4 boys can complete the work together complete 4 times चार गुना ज़्यादा काम कर लेंदा। ठीक है एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क इनटू एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन डेज। तो कम 4 गुना करते पे ने तो दिस विल बी इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डेज। तो एफिशिएंसी ऑपोजिट साइड होना चाहिए। क्लियर ओके हाँ इनू दूसरी साइड मल्टीप्लाई करना चाहिए क्योंकि एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क अपॉन डेज इतने किया कि 4 टाइम्स एज मच एज वर्क। तो 4 इधर मल्टीप्लाई करते हैं एक आप इधरली साइड मल्टीप्लाई। क्लियर इस चीज फिर तो आप रिपीट करते हैं 5 men plus 1 boy तो 4 टाइम्स 4 इधर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है 1 man plus 1 boy 5 men plus 1 boy is equal to 4 men plus 4 इधरों तीनों माइनस किया आप 5 चो 4 गए 1 man is equal to 4 boy ने तो एक बॉय ये माइनस कर दिए कितना आ गया 3 बॉय। तो मैन की एफिशिएंसी कितनी आ गई 3 ते बॉय की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1। क्लियर व्हाट इज द रेशियो ऑफ अ मैन एंड द बॉय। तो आंसर अपना एक रेशियो 3 आएगा। क्वेश्चन किसी का द वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय अ मैन एंड अ बॉय शुड बी इन द रेशियो। ओके क्लियर अपने को रेशियो आ गई थी आप आगे कटना की आंसर ये नहीं आएगा अपने को आगे आ की गया 1 man plus 1 boy। ठीक है 1 man plus 1 boy किन्ने दिनों के काम नूं करनगे की इन्हां दी रेशियो होएगी यही निकालना आपां ने। एक मैन ते बॉय की की रेशियो होएगी तो यदि अपने को रेशियो की आ जाएगी आप वैल्यू पुट कर दिए ते हाँ ठीक है देख लिया जी। तो यदि आप वैल्यू पुट कर दिए तो अपने को आंसर की आ जाऊगा 2 बॉयज 2 ने देखा कि गलत नोट जो क्वेश्चन के कितने गलती हो जाए ना फिर तो पंगा ही पै जाता भी समझ ना आए तो फिर तो समझ नहीं क्वेश्चन गलत लिखा जाए फिर तो पंगा पै। तो ये देखो जी क्वेश्चन थोड़ा जिहा गलत लिखा गया सीगा उन्होंने मैं सही कर रहा वा तो इत्थे अपने को 2 बॉयज आएगा। तो मैन की 2 तो बॉय की कितनी बन रही है 1। ठीक है तो इसलिए मैन तो बॉय की 2 रेशियो 1 बन 2 रेशियो 1 बन रही है। क्वेश्चन थोड़ा जिहा ठीक कर लेना पिछे क्वेश्चन जिहड़ा लिखण दे विच इत्थे 5 men 2 boys की जगह ते गलती नाल मैं 1 boy लिख लिया सी जिहदे करके थोड़ा काला माला हो गया सी इहनूं ठीक कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। चलो छो वो हो गया क्वेश्चन हूँ कहाँ चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। एक ट्रेडर ने अपने गुड्स का जिहड़ा प्राइस आ ठीक है वो कितना मार्क कर दिता है कितना मार्क कर दिता 40% अबव द कॉस्ट। तो कॉस्ट प्राइस आपां नूं पता नहीं मैं नंबर ऑफ गुड्स भी ले ली नंबर ऑफ गुड्स ले ले 100 तो उन्होंने कॉस्ट प्राइस है वह भी ले ली 100। एक बार क्वेश्चन कर लो सारे 100 ले ली दोवां दी। तो नंबर ऑफ गुड्स और सीपी अपने को 100 है तो मार्केट प्राइस उन्हें की 140 रख मार्केट प्राइस उन्हें की 140 रख दी। 50% ऑफ द स्टॉक 50% स्टॉक यानी 100 का 50% उन्हें कहते बेचा 50% ऑफ द स्टॉक एट मार्केट प्राइस यानी 140 के हिसाब नाल है ना प्लस 20% ऑफ द स्टॉक 20% यानी 100 का 20% जिहड़ा स्टॉक सीगा उन्हें किहदे ते बेचा 20% डिस्काउंट ते
20% का डिस्काउंट मार्केट प्राइस से 20% 140 का 20% आप कढ़ दी 28 माइनस करिए तो कितना बनता है 140 चो 112 ਜਿਹੜਾ बचा ਹੁਣ बचा कितना 50 ਤੇ भी 70 हो गया नमस्ते रितिका जी नमस्ते जी तो 17 ਦੇ 70 चला गया तो पिछे बचा कितना 30 वाला ਜਿਹੜਾ 30 स्टॉक आ 30% ਜਿਹੜਾ स्टॉक आ ਉਹ ਨੇ 25% ਜਿਹੜਾ डिस्काउंट ਤੇ ਕਿੰਨਾ डिस्काउंट है 25% डिस्काउंट ਤੇ ਵੇਚਿਆ 25% डिस्काउंट ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 75% ਵੈਲਿਊ 140 ਦੀ 75% ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 105 ਇਹ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈ ਆ ਸਾਲਾ ਕੀ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਿੰਗ ਪ੍ਰਾਈਸ 14 5 70 700 सॉरी 7000 ठीक है 14 पंजे 70 अपने को उरे बन गया 7000 इतने अपने को कितना बन गया 224 तो 24 2240 बन गया प्लस 3150 35 15 3150 तो ये सारे आप ऐड कर लें ये सारे आप ऐड करिए तो अपने को बन गया 0 5 ते 4 9 ते 23 12 चलो अपने को बन गया 12390 टोटल कितना बन गया 12390 की है सैलिंग प्राइस 12390 सैलिंग प्राइस है तो कोस्ट प्राइस कितनी सी 10000 कैवें नंबर ऑफ आइटम्स किनिया सी 100 एक आइटम का कोस्ट कितनी आप 100 रखी दोनों मल्टीप्लाई करिया तो टोटल कोस्ट प्राइस आ गई मेरे को 10000 तो 10000 कोस्ट प्राइस आ सैलिंग प्राइस जी मेरे को कितनी बननी है 12390 तो कितना फायदा होया अपने कोल 2390 रुपए का किहदे पिछे 10000 के पिछे गुना 100 किता आ 2 जीरो कटियां आ 2 जीरो का इत्थे पॉइंट लग गया आंसर मेरा 23.90 आंसर आया जिहड़ा कि नन ऑफ द अबव आ 23.9 बिल्कुल बिल्कुल डी ऑप्शन आंसर आऊगा जिहड़ा कि नन ऑफ द अबव है तो एवें दा क्वेश्चन ये पेपर दे विच क्वेश्चन रीसेंटली डी ट्रिपल एस बी के पेपर दे विच आया सीगा क्लियर ये है बिल्कुल सही नन ऑफ द अबव 22.5 हिमांशु 22.5 आंसर नहीं हैगा 22.5 आंसर नहीं हैगा डी डी आंसर है 23.90 आंसर आऊगा सारी कैलकुलेशन इतने उरे मैं करके दिखाती है एक बार इनू देख लेना ठीक है अगले क्वेश्चन से चलते हैं गाहां क्वेश्चन देखते हैं गाहां क्वेश्चन की अपने को द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट and the simple interest for 3 years and 2 years are in the ratio this तो what is the rate percent तो इतने आपां नूं की दिता होया डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड द सिंपल इंटरेस्ट यानी 3 साल का SI CI का डिफरेंस SI हमेशा सॉरी CI हमेशा ज़्यादा होंदा है सही ला लो यानी 3 साल का CI ते SI का डिफरेंस ते 2 साल का CI ते SI डिफरेंस ਇਹਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਤੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 23:7 ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਿਕਾਲਣਾ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੱਢਣਾ ਰੇਟ ਪਰਸੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊ पिछला क्वेश्चन रिपीट कर दवा हिमांशु सर एक बार क्वेश्चन रिपीट कर लो यार वीडियो रिपीट करके वेख लियो आप थोड़े क्वेश्चन कर लिए अपने को टाइम निकलता फिर आप अगे रिपीट कर दें है ना कर दें रिपीट पिछला क्वेश्चन पहला आवले क्वेश्चन कर लिए फिर मैं रिपीट कर देना अच्छा ਇਹਦਾ आंसर ਕਿਹਦਾ आ गया ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੋਊਗਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਆਨਸਰ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪਿਛਲਾ क्वेश्चन ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ सुमनदीप खुशप्रीत कितने के सारे आंसर क्यों नहीं आ रहे एदी मुनीश बी ऑप्शन मुनीश का आंसर आया ओनली मुनीश का आंसर आया बी ऑप्शन देखो इस क्वेश्चन आप करना मुनीश ठाकुर बी ऑप्शन वेरी गुड इस क्वेश्चन आप करना किस तरह यदि ट्रिक मैं तुहानू बहुत बारी दसी है कंसैप्ट भी बड़ी बारी दसिया ट्रिक भी बड़ी बारी दसी है ट्रिक दे विच आपां कुछ नहीं करना तीन जो आप तीन की गल करते ना 3 साल उदों मतलब 3 हिस्से होंगे ठीक है 7
दो हिस्सियां 2 सालों का डिफरेंस है क्लीयर 3 सालों का जो डिफरेंस है वो 23 बनता पाया तो 7 तीह कितना होंगे इनू आप सपलिट करके लिखांगे 7 तीह कितना होंगे 21 पिछे बचा कितना 2 आ जो बचिया होंगे इनू आप डिवाइड कर देना 7 के नाल यानी 2 साल वाला जो इंटरस्ट है ना वो डिवाइड कर देना 2/7 2/7 की वैल्यू कि बराबर होंगी है या तुम कह दो 2/7 गुना 100 कर लो 2/7 की वैल्यू अपनी कि बराबर होंगी है वो होंगी है 28.57% के बराबर क्योंकि 1/7 की जी वैल्यू है वो 14.28 के बराबर होंगी है 2/7 की वैल्यू 28.57% के बराबर होंगी है इस करके आंसर मेरा बी ऑप्शन आंसर क्लीयर आ कंसैप्ट सारिਆਂ ਨੂੰ पता है ना कंसैप्ट आ सी ट्रिक ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਿਨਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾਏ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੰਸੈप्ट की है ਕੰਸੈप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਣਾਵਾਂ ਆ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਬਣਾਵਾਂ ਸਲੈਬ ਮੈਥਡ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੰਸੈप्ट ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਆ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਲੈਬ ਬਣੀ गल कि कह रहा गल की जा रही है डिफरेंस ऑफ द कंपाउंड इंटरस्ट एंड द सिंपल इंटरस्ट डिफरेंस 2 साल का डिफरेंस आ 7 उरे लिखा जाऊगा 2 साल का डिफरेंस उरे लिखा जाएगा ठीक है क्योंकि आ वाला जो कोलम होंगे जे मैं इन अड करा इतों की मैं आ एस आई का कोलम होंगे तो 3 सालों के इतों भी अड करा आ एस आई का कोलम ये सारा डिफरेंस का इधर कि 23 डिफरेंस ਹੁਣ 23 अगर 7 इत्थे हैगा तो इत्थे किस तरह लिखा जाता है इनू इस तरह लिखते हैं आप किस तरह a + 2a आ यानी 2 हिस्सा होंगे इत्थे आप b लिखा हुण आ जिहड़ा a आ वो की है वो 7 है यानी इत्थे तुसीं 7 की वैल्यू पाओगे इत्थे 14 की वैल्यू पाओगे तो 14 ते 7 21 तुहाडे पूरे हो गए पिछे बचे अपने कोल 2 की है 2 रुपए मिल रहे किहदे पिछे 7 रुपए के पिछे 28.57% आंसर जिमें 3 साल हाँ जी जी 2 साल च 2 गुना होंगे ट्रिक दस दो सर ट्रिक आही है जी ट्रिक आ दसी तुहानू ठीक है ट्रिक लिए आ फॉर्मूला याद कर लियो जो 3 साल 2 साल का डिफरेंस दिता होए ए कि बराबर होंगे 3a प्लस सॉरी 3a प्लस b दे और इत्थे इत्थे की होंगे अपने को a होंगे इत्थे हमेशा a की वैल्यू आ वाली a की वैल्यू होंगी है आ वैल्यू लगा के उसके बाद होंगे कि b/a दिस इज द रेट परसेंट b/a गुना 100 ये अपने को रेट परसेंट चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं यार क्वेश्चन ज़्यादा ने अगला क्वेश्चन की है जी ट्रेन का बड़ा वधिया क्वेश्चन है बड़ा सिरेदार धमाकेदार क्वेश्चन है मज़ेदार क्वेश्चन है क्लियर तो देखना इस क्वेश्चन इस तरह करना पहला क्वेश्चन समझ लें है ना पहला क्वेश्चन समझ लें हाँ 3 साल 2 साल के ट्रिक यूज होंगी हाँ जी चलिए आगे हाँ जी की आंसर आऊगा उरे सर चलो इस क्वेश्चन को करना शुरू कर दें यार इस क्वेश्चन को समझ एक ट्रेन चलनी शुरू हुई पहले तो क्वेश्चन समझते एक ट्रेन कहता चलनी शुरू हुई 3 घंटे बाद फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट मीट विद एन एक्सीडेंट तो एक ट्रेन चलनी शुरू हुई 3 घंटे बाद ਉਹਦਾ एक्सीडेंट हो गया ਇੱਥੇ जाके ਇੱਥੇ ECC यानी एक्सीडेंट हो ठीक है ਹੁਣ एक्सीडेंट होने नाल ट्रेन की जी स्पीड है वह 75% घट गई यानी ट्रेन पहला जी 75 स्पीड की गल करिए स्पीड रेशियो की गल करिए जिथे पहला 100% नाल चलती सी वो हुण किन्ने नाल चल रही है 75% नाल 25 चौके 100 तो 25 तीह 75 यानी स्पीड की रेशियो मैं उरे करके लिख लवां किते स्पीड की रेशियो आ 4:3 रह गई एक्सीडेंट के बाद ठीक है स्पीड की रेशियो 4:3 रह गई एक्सीडेंट के बाद तुक्का नहीं लाना मनदीप सिंह तुक्का नहीं लगाना आंसर करना है पूरा ध्यान नाल क्लियर ओके क्लियर
ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਲ ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੀ ਆ, ਆਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਜਦਾ ਤੇ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ? ਤਾਂ 4 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, 4 ਘੰਟੇ, 4 ਆਰ ਲੇਟ। ਕਲੀਅਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਗਰ 150 if he had if had the accident happened 150 किलोमीटर farther the line, अगर कहता 150 किलोमीटर तो बाद, यानी इस लाइन तो 150 किलोमीटर बाद अगर एक्सीडेंट होंदा, समझ रहे हैं? कहता अगर एक्सीडेंट इत्थे ना हो के स्टार्टिंग पॉइंट तो 150 किलोमीटर दूर हुंदा, 150 किलोमीटर दूर हुंदा, 150 किलोमीटर फारदर अलोंग द, मतलब नहीं इत्थों दी, सॉरी 150 किलोमीटर ਜਿਹੜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਲਬ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬਾਤ, ਲਾਲ ਲਾਈਨ ਆਪਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਬਾਤ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੇਟ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਲੇਟ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਆਊਗਾ। ਕਲੀਅਰ। ਅਤੇ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ, 3.5 ਘੰਟੇ ਆਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ 3.5 ਘੰਟੇ ਆਊਗਾ, 3 ਘੰਟੇ ਨਾਲ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ 3 ਘੰਟੇ ਲਈਏ ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ 3 ਘੰਟੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ। 3.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, 3.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਥੋੜਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। तो 3.5 घंटे के हिसाब नाल ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ 3.5 ਘੰਟੇ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਨਸਰ 3 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਢਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਨਸਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ 3.5 ਘੰਟੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਸੋ ਦੈਟ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? 3, ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 4। ਹੁਣ ਆ ਲੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਆ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਲੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 1 ਆ ਉਰੇ ਜਿਹੜਾ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆਇਆ? 4 ਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਔਨ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ 12 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, 4 ਗੁਣਾ 3 ਯਾਨੀ 12 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਟੋਟਲ ਜਰਨੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨਾ ਲੱਗਿਆ? 16। ਆ ਕੇਸ 1 ਸੀਗਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ। ਕਲੀਅਰ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਪਹਿਲੀ। तो कंडीशन दूसरी लिखनी शुरू करते हैं इत्थे। कंडीशन 2 की होगी, दूसरी कंडीशन, ठीक है। केस 2 स्पीड रेशियो तो वही रही, तो सिर्फ ये फर्क कितने पिया? टाइम के फर्क पै गया। किस तरह कि स्पीड की रेशियो तो यही सी, टाइम की आ स्पीड की, आह टाइम की रेशियो 3:4 सी। आ जो डिफरेंस है एक हिस्से का, ये हुण कितना रह गया? 3.5 घंटे के बराबर आ गया। क्वेश्चन मैं 3.5 घंटे के हिसाब से कर रहा कि किहदे बराबर आ गया? 3.5 घंटे के बराबर आ गया। क्लीयर है ना। तो 3.5 घंटे के बराबर क्वेश्चन आ गया अपने को। हुण आपां की करिए, आपां इत्थे ही आ जिहड़ा टाइम सीगा किहड़ा सीगा? ओरिजिनल टाइम। आ किहड़ा सीगा? आफ्टर एक्सीडेंट, यानी रिड्यूस्ड स्पीड यानी इंक्रीज्ड टाइम। आ रिड्यूस्ड वाला टाइम सी। ओरिजिनल तो इत्थे अपने को टाइम कितना लग्या? 3.5 इंटू 3, ठीक है। तो अपने को इत्थे कितना बन गया? 6 ते 7 7 21/2। तो इत्थे टाइम कितना लग्या अपना को 21/2। इस कंसैप्ट नूं हुण समझ। आ जिहड़ा डिफरेंस 21/2 ते 12 दे विच जिहड़ा डिफरेंस है, इहदे विच 21/2 ते 12 दे विच जिहड़ा डिफरेंस आ, आह टाइम डिफरेंस है जिहड़ा, ये कितना बनदा पिया अपने कोल? 24। 24 दे विचों 21 के 3, 3/2। यानी आह जिहड़ा टाइम डिफरेंस है, आह इक्वेट करेगा किनू? आह 150 किलोमीटर। किनू? 150 किलोमीटर नूं। तो ये मेरे को टाइम आ गया, ये मेरे को डिस्टेंस आ गया। स्पीड का फॉर्मूला लगेगा उरे, स्पीड इज इक्वल टू क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 150/3/2, तो 2 उत्ते चल जूगा, तो 5 तीए कितना आ गया? 15, ठीक है। तो 5 दूनी 10, तो स्पीड कितनी आ गई? 100। स्पीड कितनी आ गई? 100 किलोमीटर प्रति घंटा आह स्पीड आ गई। 100 किलोमीटर प्रति घंटा ये स्पीड है। तो टाइम कितना लग रहा सी? ओरिजिनल कितना लग गया सी? 12 घंटे। तो 100 गुना 12, ठीक है, कितना बन गया? 1200।
तो 1200 किलोमीटर सी ऑप्शन आता अगर मैं टाइम जरा 3.5 घंटे लेना। क्लीयर। जे आप 3 घंटे लेने वो कोई फर्क नहीं पैना, 3 घंटे भी ले लीए आप कोई वो खास फर्क। क्लीयर। ठीक है, कोई खास फर्क पैन वाली कोई गल नहीं। अगर डिफरेंस आप 3 घंटे ले लीए तो की बन जूगा 9 बन जूगा। एक हिस्से की वैल्यू कितनी बन जाएगी 9। एक हिस्से की वैल्यू कितनी बन जाएगी 9। तो 9 तो 12 के अपने को डिफरेंस कितना रह गया 3। तो 3 हिस्सों की जी वैल्यू आ वो कि बराबर अपने को 150 के बराबर। क्लीयर। क्लीयर। क्वेश्चन सारे समझ लग गया। 3.5 घंटे के हिसाब से समझ लग रहा। हूँ मैं 3 घंटे के हिसाब से क्वेश्चन कर। ठीक है, आज थे जो क्वेश्चन च सीगा उस हिसाब से क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन जो सारे समझ लग गया सीगा, आ वाला क्वेश्चन इतने एक हिस्से की वैल्यू कितनी बनी 3। तो 3 तीए 9। इतने कितने घंटे बने 9 घंटे। तो 12 के विचों 9 गए किन्ने बन गए अपने को 3 घंटे। तो 3 आर ये आ गया अपने को टाइम आ गया। क्लियर। तो डिस्टेंस कितना 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर डिवाइड बाय 3। तो अपना उरे 150 किलोमीटर डिवाइड बाय 3। तो कितना अपने को आ गया 5 तीए 15। तो इतने कितना आ गया 50 किलोमीटर पर आवर स्पीड आएगी। जेडे बच्चे कुछ शायद 150 आंसर दे रहे थे उन्होंने गलत होगा 150 आंसर। क्लियर। 50 किलोमीटर पर आवर जी स्पीड आऊगी। और टाइम कितना है टाइम है 12 घंटे। तो 12 नाल आपां उरे मल्टीप्लाई कर देवांगे। 12 नाल मल्टीप्लाई कर दिए 12 पंजे 60। तो डिस्टेंस फिर 600 किलोमीटर आऊगा। जे आप 3 घंटे लाइए तो आंसर यानी इस क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन करिए तो आंसर नन ऑफ दीज आएगा। इतने आप 3.5 घंटे आंसर करिए फिर सी ऑप्शन आएगा। जोड़े बच्चे ने डी ऑप्शन आंसर दिता है उन्होंने आंसर गलत है। ठीक है, उन्होंने आंसर गलत है और क्यों गलत है वो मैं तुम्हें दस दिता करके क्वेश्चन दस दिता। किलोमीटर पर आवर अपनी स्पीड आ गई जी। सही सही सही। हाँ हाँ मल्टीप्लाई आपने को आर आया हुआ। देखो इतने आप टाइम ਨਾਲ सीधा मल्टीप्लाई किया उरे पहला आप टाइम ਨਾਲ किया फिर आपको ये डिस्टेंस दिता हुआ 150 किलोमीटर डिस्टेंस दिता हुआ आप डिस्टेंस ने किया। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर दो सर, एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दो। और ये देखो आप टाइम लवेंगे 1.5 घंटे। ठीक है, तो स्पीड की रेशियो अपने को कितनी बनी हुई है अपने को 4:3। टाइम की रेशियो कितनी बनी हुई है 3:4। केस 1 केस 1 के लेट हो गया बाय 4 आवर्स। केस 1 के लेट हो गया बाय 4 आवर्स। तो आ दोवां दे विच जिहड़ा टाइम का डिफरेंस है यही 4 घंटे के बराबर है। 4 तीए 12 तो इत्थे कितना बन गया 12 घंटे। ओरिजिनल टाइम आ गया तुहाडे कोल 12 घंटे। ठीक है, दूसरी कंडीशन कंडीशन 2 दे विच की होया। गुड मॉर्निंग जी। कंडीशन 2 दे विच की होया कि टाइम की जी रेशियो सी वो तो यही सी पर आ जो डिफरेंस एक हिस्से की वैल्यू आ वो 3.5 हो गया। 3.5 का 3.5 का मतलब की हो गया जी आप 3 मल्टीप्लाई करिए 21/2 आ गया। ठीक है, आ टाइम इतने कि लगे 21/2 इतने टाइम कि लगे 12। आ दोनों के टाइम के फर्क कि 21/2 माइनस 3 3 नहीं 21/2 माइनस 12 12 माइनस 21/2 दोवां दे विच फर्क कितना है दोवां दे विच फर्क है 3/2। 3/4 आवर्स का फर्क एक ही है डिफरेंस। दिस डिफरेंस इज ड्यू टू द दिस किलोमीटर डिस्टेंस। तो इस करके 150 आप डिवाइड करा 3/2 नाल ते 2 चल जूगा उपर। तो 5 तीए 15 ते 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी स्पीड आ जूगी। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की अपनी स्पीड आ जूगी। तो यदा आंसर डी ऑप्शन सी ऑप्शन जो आंसर बिल्कुल करैक्ट बनूगा। 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड और टाइम जो 12 दिता हुआ तो स्पीड इंटू टाइम कर देवे डिस्टेंस जो 1200 किलोमीटर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए फिर। पिछला क्वेश्चन समझ लग गया।
क्वेश्चन ट्रिकी सीगा, समझण वाला सीगा, औखा क्वेश्चन कराया तुहानूं सो दैट कि चीज़ समझ लग जाए। ये क्वेश्चन तो शायद आपां कल भी कीता सी, है ना, रिपीट हो गया, पुराने किसी पेपरां दे विच 2 वारी आया होना अलग अलग पेपर। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? अ मैन सोल्ड टीवी सैट एट 25% प्रॉफिट, तो 25% प्रॉफिट ते टीवी सैट नूं सैल किया जा रहा, 100 ते 125 बन गया, ठीक है। ऑन इट्स कोस्ट प्राइस, तो ये सीपी आ गई, ये अपने को सैलिंग प्राइस आ गई। कहता 20% प्रॉफिट ऑन द सैलिंग प्राइस, तो कहता एक होर सैलिंग प्राइस लवांगे, इतने 20% होर 25% होर प्रॉफिट, तो कितनी बन गई? तो 56.25। P SSB ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ, ਜਲਦੀ ਸਟਾਰਟ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ then the gains, ਤੇ ਗੇਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5% plus 100। तो ਹੁਣ ਗੇਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਗੇਨ ਜਿਹੜਾ 5% plus 100 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। तो ਆ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੇਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, दैट इज द डिफरेंस, ठीक है। गेन के आ की बन गया 25, आ दोवां च डिफरेंस कितना बन गया 31.25, आ दोवां च डिफरेंस कितना बन गया 6.25, 6.25 इक्वल टू आ जड़ा गेन के बराबर आ गया 5% जमा 100 दे, तो इधर चल गया 1.25% की जी वैल्यू कितनी आ गई, तो 1.25 की वैल्यू सॉरी 1% की वैल्यू कितनी आ गई 100/1.25, 100% यानी कोस्ट प्राइस, तो कोस्ट प्राइस कितनी आ गई 0.25, आ तुसी आ देनी है 25 तो कर देना 10, 5 दूनी 10, इदा ही रहने देना। आंसर कितना आ गया अपने को 8000, अपने को आंसर आ, तो इतने आंसर कितना आ गया 8000। और ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ, एग्जाम देन जा रहे हैं, खुशप्रीत जी बेस्ट ऑफ लक। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ एग्जाम है उन्होंने बेस्ट ऑफ लक। सर साइट चल नहीं रही, P SSB ਦਾ फॉर्म करना सी, साइट रात ਨੂੰ ज़्यादा चलती है, तो राती ਜਿਹੜੇ फॉर्म वगैरह राती फिल कर लिया करो, ठीक है। तो अज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो, तो दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन एक कल मैं करावांगा, दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका कंसैप्ट समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, ठीक है। तो दिस इज़ आल्सो द क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रैक्टिस करो इहो जे क्वेश्चंस दी, और इस ट्रिक नूं जिहड़ा अपनी कॉपियां दे विच नोट कर, ठीक है। दिस इज़ इंटरस्टिंग क्वेश्चन। इस क्वेश्चन दे विच कुछ बच्चों ने मैनूं कहा सीगा कि इनू रिपीट कर दो, मैं नंबर ऑफ आर्टिकल्स ले ले 100, तो एक आर्टिकल का प्राइस ले लिया मैं कितना 100, तो टोटल मेरा प्राइस बन गया 10,000, इन्होंने मैं मल्टीप्लाई करांगा, टोटल मेरी कोस्ट प्राइस कितनी बन गई 10,000। कहता कि एक प्राइस का आर्टिकल 40% मैं जिहड़ा अबव कर देना, मार्क्ड प्राइस बना देना, 50% स्टॉक है जिहड़ा 140 के भाव नाल बेचिया, 20% स्टॉक 140 ते 20% का डिस्काउंट दे के, यानी 112 के हिसाब नाल बेच, जिहड़ा बचा कितना 30%, यानी 30 हिस्सा स्टॉक का बचा, तो 30 हिस्सा स्टॉक का 25% डिस्काउंट दे के, यानी 105 रुपए के भाव नाल आपां बेचिया, तो सारे मल्टीप्लाई किया, तो इनू मल्टीप्लाई किया 7000, 2240 आ गया, 3150 आ गया, सारे ऐड कर दिता है, मेरी टोटल सैलिंग प्राइस आ गई। टोटल पैसा खट्टिया कितना, तो पैसा उन्हें 12,390 खट्टिया, लगाया कितना सी 10,000, इतने प्रॉफिट उन्होंने कितना हो गया 2390, ये पिछे 10,000 के पिछे, तो 2390 10,000 के पिछे कितना बन गया, कितना परसेंट बन गया 23.90%। अकाउंट क्लर्क वास्ते पहला तो जो अपने को सिलेबस के विच हैगा आपां वो चीज़ां करी जाइए, तो अकाउंट क्लर्क वास्ते तुसीं वही कर सकते हो जो हैगा फिलहाल जर्नल दे विच ओहदी तैयारी कर सकते हो। नैक्सट जिहड़ा क्वेश्चन सीगा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है, दिस इज द गुड क्वेश्चन, दिस वाज द गुड क्वेश्चन, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन अपने डायरीज दे विच नोट कर लो। तो जिन्हों का पेपर है बेस्ट ऑफ लक, तो जिन्हों का पेपर हो गया होप फॉर द बेस्ट, जिन्हों का पेपर है बेस्ट ऑफ लक, और काम है जो लगन नाल करो, ध्यान नाल करो, अपने आप तरक्की तुहानूं मिलेगी, ठीक है।
ਅਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਊਟ ਹੋਏ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੂ ਆਲ। ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, PSSB ਦਾ ਬੈਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ 18 ਨੂੰ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਪੇਪਰ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਫਸਟ ਜਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਤੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਪ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਸੈਕਿੰਡ ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਬੈਚ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਤੱਕ ਕਲਾਸਾਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੈਚ ਨੂੰ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਡਾ 24/7 ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਊ ਆਫਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਪਅਪ ਵਿੰਡੋ ਖੁੱਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਉਰੇ ਆਪਣੀ ਫਿਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਇੱਥੇ ਫਿਲ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਕੂਪਨ ਕੋਡ Y354 ਲਗਾਓ ਔਰ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੈਚ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਉਹ 1840 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜੂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ ਟੂ ਆਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਅੱਡਾ 247 ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨੱਪ ਕੇ ਜਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।